آج دل بڑا غمزدہ ہے، آنکھیں نم ہیں، دماغ بوجھل ہے، سوچ منتشر ہے، ایک آگ ہے جو اندر ہی اندر نہ جھلسا رہی ہے، ایک نوحہ ہے جو چیر رہا ہے سینہ، ایک سوال ہے جو بیٹھنے نہیں دے رہا چین سے کہ آخر کب تک، بھائی کب تک، آخر کب تک مائیں سوختہ لاشوں میں اپنے جگر گوشے تلاش کرتی رہیں گی؟ بھائی کب تک باپ اپنے جوان سہارے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال، دوسرے اسپتال سے تیسرے اسپتال کا چکر لگاتے رہیں گے؟ کب تک بہنیں اپنے بھائیوں کی راہ تکتی رہیں گی؟ کب تک بچے والد کی واپسی کا انتظار کرتے رہیں گے؟ کب تک کی بیویاں اپنے سہاگ لٹاتی رہیں گی؟ کب تک، آخر کب تک؟ ہر واقعے کو حادثے کا اور سانحے کا نام دے کر، ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال کر، اس کی اور اس کی طرف انگلیاں اٹھا کر، تحقیقات کے نام پر صفحے کالے کر کے، فائلز بنا کر، الماریوں میں دبا کر، ہم نہ کسی اور حادثے کے انتظار میں لگ جاتے ہیں۔ کراچی کی گل پلازا میں آگ لگی، اس کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت اب 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، لیکن آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ میٹروپولیٹن سٹی کا گل پلازا، وہاں 24 گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ سندھ میں 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن 18 سال کے بلا شراکت غیر اقتدار کے باوجود کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو 18 منٹ میں رسپونڈ کر سکتا۔ حالات یہ ہیں کہ 18 گھنٹے لگ گئے ریسکیو اہلکاروں کو گل پلازا کے اندر قدم رکھنے میں۔ 18 سال کے اقتدار کے باوجود، 18 سال کے اقتدار کے باوجود ہمارے پاس نا 18 سنورکلز نہیں ہیں جو آگ بجھا سکیں۔ 18 سال بعد بھی ایسے 18 فائر فائٹرز نہیں ہیں جو جدید تربیت کے حامل ہوں، جن کے پاس جدید آلات ہوں۔ اس وقت بھی جو موقع پر گاڑیاں موجود ہیں جو آگ بجھا رہی ہیں، ان میں سے بیشتر 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وفاقی حکومت نے خرید کر فائر بریگیڈ حکام کے حوالے کی تھی۔ لیکن اگر بات آتی ہے پھر بیانات کی، تو بھائی کیا لاہور، کیا اسلام آباد، کیا کوئی اور شہر، ہمارا مقابلہ تو صوبے سے ہے ہی نہیں، ہمارا مقابلہ تو دنیا سے ہے۔ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، بیانیہ جھوٹا بیانیہ۔ ہم اب کسی اور صوبہ سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب آئے گا غصہ کہ آپ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، آپ اس پہ پوائنٹ سکورنگ کیوں کریں؟ تو حضور پھر کیا کریں؟ آپ کے 18 سال کی بات تو فنگر پوائنٹس پر ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ، انہوں نے گل پلازا یونین اور دکانداروں کا جو موقف ہے اسے تو مسترد کر دیا کہ فائر بریگیڈ وقت پر پہنچی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں یونین والے۔ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 10:16 پر اطلاع ملی اور 10:27 پر فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچ گئے۔ اب سنیے ذرا کمال کیا ہے یہاں پر۔ جو چیف فائر فائٹنگ آفیسر ہیں جنہوں نے رسپانس کیا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اطلاع ہی ملی 10:26 پر، اور 1 منٹ کے بعد انہوں نے وہاں سے گاڑیاں روانہ کر دی۔ واضح رہے، پہنچی نہیں، روانہ کی۔ 10:16 پہ ادھر سے اطلاع دی ہے، 10:27 پہ 11 منٹ بعد پہنچا تھا فائر ٹینڈر۔ کتنا اچھا ہوتا، کتنا بہتر ہوتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب پہلے اپنے اداروں سے پوچھ لیتے، پھر متاثرین کے دعوے کو مسترد کر دیتے۔ ایک اور نا بہت بڑا سوال جو بار بار ہوتا رہا کہ فائر فائٹرز کے پاس سیفٹی آلات کیوں نہیں تھے، اور وہ شروع میں ہی کیوں پلازا کے اندر داخل نہیں ہو سکے جب آگ کی نوعیت زیادہ نہیں تھی۔ دکانداروں کے سوال کا جو جواب ہے وہ خود چیف آفیسر دے رہے ہیں۔ ناظرین، گل پلازا میں 1200 دکانیں تھیں جو اب جل کر بھسم ہو چکی ہیں، خاکستر ہو گئی۔ اربوں کا سامان کوئلہ ہو چکا ہے، عمارت کے کچھ حصے گر گئے ہیں، باقی انتہائی مخدوش ہے۔ 6 میں سے 4 لاشوں کی شناخت ہو سکی ہے، باقی 2 کا شاید ڈی این اے کے بعد ہی اب پتہ چل سکے گا۔ جو اب تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق حکومتی ہیلپ ڈیسک پر 60 افراد کے لاپتہ ہونے کی شکایات درج ہوئی ہیں۔ اندر مزید کتنے لوگ ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ان لاپتہ افراد کے ساتھ ایک شخص اور بھی ہے جو نہیں مل رہا تھا، معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے، حالانکہ اس کا دفتر گل پلازا سے صرف چند منٹ کی دوری پر ہے۔ جو لوگ کراچی کی ایم جناح روڈ کی سڑک کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس شخص کا دفتر کتنا دور ہے۔ جہاں آگ نے اربوں کا نقصان کر ڈالا، اگر وہ شخص پیدل نکلنا چاہتا تب بھی یہاں پر پہنچ جاتا، اور اگر شہر کے کسی اور کونے میں ہوتا تب بھی 1 سے 2 گھنٹے اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ شہر سے باہر بھی ہوتا تو سفر کے لیے 10 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے وہ کہاں تھا۔ جب میں آپ کو اس شہر کا درد بیان کر رہی ہوں تو اب سے چند منٹ پہلے وہ لاپتہ شخص یہاں پر نمودار ہوا۔ نام ہے ان کا مرتضی وہاب، جو کراچی کے میئر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔
डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद, इनके मुताबिक वो इस्लामाबाद में थे, यहाँ पर थे, वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी ना जिसमें मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद थे, वो यकीनन इस आग से ज्यादा कीमती होगी, इसी वजह से मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पर थे। वरना यकीन है मुझे कि फौरी तौर पर यह खबर सुनते ही पहुंचना होता मुर्तज़ा वहाब साहब को वहां पर। अब नाज़रीन, ये पहला वाकया नहीं है कराची का। बल्दिया फैक्ट्री का सानेहा, ये याद होगा आप सबको, 250 से ज्यादा जिंदा जल गए थे लोग। आग बुझाने में घंटे नहीं बल्कि दिन लग गए थे। उसकी जो इंसानों के जलने की स्मेल है ना, वो आज तक नहीं भूल पाई हूँ। बिल्डिंग वाली आग, जो स्टेट लाइफ की बिल्डिंग में आग लगी थी, वो मंजर भी आंखों से नहीं जाता, जहां नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाला नौजवान गिरकर मर गया था। और ये एग्जैक्टली बल्दिया फैक्ट्री के बाद का वाकया था। वो शख्स इस वजह से खौफजदा था कि यहां पर भी उसका वही हाल ना हो जो बल्दिया फैक्ट्री में 250 लोगों का हुआ था। वो मंजर कैमरे की हर आंख में महफूज था। आरजे शॉपिंग मॉल की आग 11 जिंदगियां निकलने के बाद ठंडी हुई थी। मिलीनियम मॉल में 250 दुकानें जली थी। कोऑपरेटिव मार्केट में 300 दुकानें जली थी। विक्टोरिया मार्केट में 45 दुकानें जली थी, कोयला बन गई थी। अरबों का नुकसान हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद हम फायर ब्रिगेड को ठीक ही नहीं कर सके। कोई ऐसा निजाम ही नहीं बना सके जो बिल्डिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल कर सकता। 18 गाड़ियों के बारे में हम कह रहे थे, यहां पर नहीं है। इस शहर में 200 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जरूरत थी। यहां पर मेरे सामने ये 2 बुकलेट्स मौजूद हैं, ये रखी हुई हैं, जिसमें अभी आज से 3-4 दिन पहले सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी बता रही थी कि 18 साल और उससे पहले से अब तक क्या कुछ किया है सिंध हुकूमत ने। लेकिन एक शहर जहां पर इतनी जिंदगियां आग की नजर हो चुकी हैं, मैं हैरान हूं। इस पूरे बुकलेट में मुझे फायर ब्रिगेड के हवाले से कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं दिखाया, या सिंध हुकूमत के पास शायद दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि अगर इस तरह के सानेहात और हादसात हो जाएं सिंध में या कराची में तो उनके लिए क्या किया जाएगा। शायद प्रायोरिटी में ही नहीं था। हाफिज नईमुर रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मौजूद मेहमान है मेरे, अमीर हैं जमात इस्लामी के। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है ये। इसने 2012 वाला सानिया बल्दिया फैक्ट्री याद दिला दिया, उसके बाद वाले वाकयात याद दिला दिया। और आज जिस तरह से लोग बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ है हुकूमत, क्यों नहीं हो पाया कुछ, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? क्या कहेंगे आप इस सारे साने पर, वाकये पर? क्या कहूँ मैं इस रईसी पर। सच्ची बात यह है कि यहाँ कराची के लोगों को तो कभी गटर में ये डाल रहे हैं, कभी ये ट्रालों के हाथों मरवा रहे हैं, और कभी जो है ये आग का शिकार कर रहे हैं। ना इनका कोई सिस्टम है, ना इनके पास कोई इमरजेंसी चीजों को हैंडल करने का जरिया मौजूद है, तरीका मौजूद है। आप मुझे बताएं कि ये गुल प्लाजा जैसी जगह रात 10 बजे के बाद आपको पता है वहाँ ट्रैफिक वैसे ही बहुत कम हो जाता है, और 2 फायर स्टेशन मेरा ख्याल है कि 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में मौजूद है। और अगर वहां पर आधा पौना घंटे तक गाड़ी ना आए, और गाड़ी आए तो किसी के पास पानी नहीं, और निकलने के लिए जो है वो डीजल नहीं, और इस तरह के सवालात मौजूद हों, और फिर उसके बाद जो फायर फाइटर्स हैं उनको इन जो है वो झोंक दिया जाता है। ये कहते हैं कि जनाब अगर आपके पास जूते मौजूद हैं और आपके पास हेलमेट मौजूद है तो ये आपकी किट है। तो भाई ये किट नहीं होती है, ये आग बुझाने के लिए प्रॉपर पीपीई चाहिए होते हैं, और ये नहीं है। तो ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये हजारों अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के पास तरक्याती फंड के होते हैं, हजारों अरब रुपए इन तमाम चीजों के होते हैं, और ये खा जाते हैं, करप्शन करते हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे सूबे का और शहर कराची को। तो इन्होंने ऐसा लगता है कोई दुश्मनी है इनकी, और इंतकाम लेते हैं। कोई एक चीज तो बताइए ना जो कंट्रोल कर सकते हो। और आप बात करते हैं, हद ये है कि ऐसा लग रहा था परसों कि जैसे बिलावल साहब ने कुछ स्विट्जरलैंड बना दिया है कराची को, और सिंध में तो जो है ना ऐसे जमजमे बह रहे हैं। अरे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इनका विजन मोंजोदड़ो है, तबाहशुदा मोंजोदड़ो। क्योंकि जब मोंजोदड़ो की तहजीब मौजूद थी वो भी बड़े सलीकामंद थे, ये तो तबाह होने वाला मोंजोदड़ो बना रहे हैं और मजीद खाना चाह रहे हैं। और बात यह है कि ये वंडर बॉय बनने के चक्कर में 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन्होंने, तबाह करके रख दिया है, और कोई पूछने वाला नहीं है। कराची के लिए सर आपने भी बड़ी आवाजें उठाई हैं, उठाते रहे हैं। अब अभी इस वक्त सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट, और उस पर मैं मेयर कराची को बार बार रात से जब से सानिया था मैं ढूंढ रही थी। 24 घंटे पूरे होने से पहले वो वहां पर आ गए। किसको आप, क्या प्रायोरिटी नहीं है शहर, क्या किसकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 17 साल से हुकूमत में है, उनके सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, उनके वजीर आला मुराद अली शाह साहब, उनके वजीर बल्दियात, उनके कब्जा मेयर साहब,
वो है जिम्मेदार, और उनके ऊपर ही जिम्मेदारी आयद होती है कि ये शहर के साथ क्या सलूक किया हुआ है, खंडर बना के रख दिया है, बर्बाद कर दिया, पानी नहीं, जहाँ के इलेक्ट्रिक को मुसल्लत करके इन सब लोगों ने रखा हुआ है, जहाँ पर जो है वो बुनियादी सहूलतें नहीं, धूल मिट्टी चाटते रहते हैं, कवच बंद, एक एक प्रोजेक्ट जो 1 साल का होता है वो 4-4, 5-5, 6-6 साल चलता है। ग्रीन लाइन 15 साल में मुकम्मल नहीं हो सकी है, 12 साल में। K3 नहीं बनाया, S3 नहीं बनाया, K4 नहीं बनाया, S3 नहीं बनाया, कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, मास ट्रांजिट नहीं है, KCR ठीक तरीके से नहीं हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिलता। यहाँ पर लोग क्या करें, करोड़ों लोग। असल बात यह है कि ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं, किसका फरियाद करें, कौन है इन 6 जहाजों का जिनकी लाशें निकल चुकी हैं, अभी 60 लोग अंदर है, नहीं मालूम के किसके साथ क्या हुआ है। बस अल्लाह ताला रहम फरमाए। हाफिज साहब, अल्लाह ताला रहम फरमाए। सिंध हुकूमत अब कंपनसेट करने की बात कर रही है ना, लेकिन कीमती जानों का जो इजाला है वो कैसे हो सकता है? तहकीकात होती हैं, हर दफा यही होता है, तहकीकात होती हैं, हुकूमती फाइलें फिर कहीं दब जाती हैं, फिर खुदा न खास्ता किसी नए साने का इंतजार किया जा रहा होता है। आपकी कोई हिकमत अमली होगी इस सानिया को लेकर? देखें, प्रोटेक्ट करना इनकी जिम्मेदारी है, कंप्लाइंस करना इनकी जिम्मेदारी है, हालात को देखना। इनका SBCA करता क्या है करप्शन के अलावा? सिस्टम बना हुआ है ना, वो पूरा चल रहा है ना, उस SBCA की जिम्मेदारी बनती है। और जो बिल्डिंग कंट्रोल कोड है उस पर अगर अमल नहीं हो रहा, आप कागज देखेंगे ना तो सब पर अमल हो चुका होगा। आप देखेंगे ना कि ये जो एग्जिट होते हैं वो एग्जिट प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो इनके कागजों में काम कर रहे होते हैं, इनके इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर तक का एक धंधा बना हुआ होता है। और ये अगर आप पूछेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स थे तो कहेंगे हाँ, हर चीज प्रॉपर काम करने वाली होती है, लेकिन जब भी कोई वाकया होता है ये सब चीजें प्रॉपर वर्किंग नहीं करती, कोई ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं होता, कोई एग्जिट प्रॉपर नहीं होता, वहां पर लोग स्टोर बना देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए ये जिम्मेदारी 100%, 200% इन लोगों पर आयद होती है जो हुकूमत में मौजूद है और हजारों अरब रुपए खा गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज नईमुर रहमान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।